Morning students, we have discussed about the refraction of light. Right? जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था? If a ray of light, for example, this is your glass lamp. In that, if this is your normal ray, right? And a ray of light falls on it and form an angle I. That angle I is known as angle of incidence. Like when it passes from one medium, air to glass, means from rarer medium to denser medium. So what will happen? It will not move in a straight line. Like there is no straight line, it will just move like this, right? But it will be bent towards the normal with an angle. This angle is known as angle R, and this is known as angle of refraction. So what do you mean by refraction? Refraction means bending of light. Refraction means bending of light. When it passes from a transparent medium to other transparent medium. Right? तो जब आपकी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर जाती है, वन विल बी अ रेयरर मीडियम and another will be a denser medium, then there will be bending of the light takes place, and that bending of light is known as your refraction of the light. And why it is so? Because when the speed of the light is here and the speed of light is in the glass, that are different from each other. Due to difference in the speed of the light, there will be bending of light takes place, and the ratio of the speed of light in the different medium is generally known as your refractive index. तो ये आपका मैंने सिंपली जस्ट रिकैप्चुलेट किया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं. जो मेन टॉपिक अब हमारा शुरू हो रहा है फॉर टुडे क्लास, दैट इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. So we will start our refractive index. Refractive index. Refractive index simply वही glass slab that is transparent in the nature, and there is bending of the this is your normal ray, and a ray forms an angle I on it. After bending, it will be just like this, bending towards your normal. Right? So this angle I and angle R is there. This is angle of refraction. और angle I क्या? Angle of incidence. Angle of incidence. This ray which forms, this is known as your refracted ray. इस रे को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे. और ये कौन सी रे? आपकी इंसिडेंस रे. यानी आपके जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जब आपकी क्या जाएगी, लाइट पास करेगी, then it will be bent towards the normal, and the speed of the light in this medium air and in this medium glass will be different from each other. And if we want to calculate the ratio of that, and the ratio of the speed of the light in two different medium is known as your refractive index. तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. कब? द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम. फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपली कहूं कि ये आपका एयर है और ये आपकी क्या है? ग्लास है. ये आपका रेयरर मीडियम है और ये आपका क्या है? डेंसर मीडियम है. तो स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिफरेंट इन टू डिफरेंट मीडियम. देन द रेशियो ऑफ दैट, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी ऑफ लाइट in air is around 3 into 10 raised power 8 meter per
3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यदि मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी स्पीड ऑफ लाइट किसमें देखो इन ग्लास, that will be around 2 into 10⁸ meter per second. So we can calculate the ratio between the speed of the light in two different medium, and that is known as your refractive index, and that refractive index is known as mu or mu, like that. या तो हम इसको n कर सकते हैं या u से लिख सकते हैं, किसी से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं. दैट इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब मुझे एक मीडियम से दूसरे मीडियम का कैलकुलेट करना है. इसके लिए वही कंसीडर अ रे ऑफ लाइट, वो जो यहाँ से आप किस पे फॉल कर रही है, ऑन द ग्लास स्लैब विद एन एंगल आई, and after passing from one medium to other medium, it will be bent towards the normal ray and with an angle of r. So what will be the ratio of that? Then the refractive index of medium 2, refractive index of medium 2 with respect to 1, medium 1. इसको हम कैसे डिनोट करें, n to 1, राइट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1, that will be equal to the speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2. अंडरस्टैंड. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, 2 का, किसके अगेंस्ट, एयर 1 मीडियम के. फर्स्ट मीडियम मेरा क्या है, एयर है. दूसरा मीडियम मेरा क्या है, ग्लास है. तो मुझे ये देखना है कि ग्लास में से जब ये पास होती है तो व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि मान लो स्पीड ऑफ लाइट इतनी है, दैट इज हैविंग द, इफ द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज इक्वल टू v1 एंड हियर इट इज इक्वल टू v2. तो v1 डिवाइडेड बाय में v2, that is equal to n to 1. Refractive index of medium 2 with respect to medium 1. तो ये किसका हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा मीडियम 2 का. मीडियम 2 मेरा क्या है, यहाँ पे आपका ग्लास, उसका निकल जाएगा. अब मुझे वापस निकालना है, जैसे यहाँ से जब बाहर निकलती है तो 2 का 1 के साथ निकाला, तो उसी तरह से हम 1 का 2 के साथ निकाल सकते हैं, n12. That n12 is equal to your speed of light in medium 2 divided by speed of light in medium 1. तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, 2 में मेरी कितनी है, v2, और इसमें कितनी है, v1. That is equal to n12. So you can easily calculate the refractive index of any medium if you are giving the speed of the light in the different medium. और speed of light आपको एक की दी हुई है, एक refractive index दिया, तो you can calculate the speed of the light of the other medium. ये कब है, जब मेरे पास दो अलग अलग मीडियम है. मान लो मेरे पास एक बार ग्लास है और एक बार मेरा क्या एयर है, तो दो अलग अलग मीडियम हो गए. उसी तरह से आपका एक बार वाटर है, एक बार सॉलिड है, ग्लास है, तब आपके दो अलग अलग मीडियम हो गए. इफ द वन मीडियम 1 इज वैक्यूम, यदि मैं मीडियम 1 को क्या मानू, हर बार वैक्यूम मानू, then this refractive index will be known as absolute refractive index. When medium 1 is vacuum, तो जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे चेंज करेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से चेंज करेंगे, और दैट विल बी वैक्यूम भी बोल सकते हैं, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, एयर भी बोल सकते हैं, एंड दैट विल बी डिनोटेड बाय nm. उसको तब हम क्या कहेंगे, nm, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. मीडियम का तब बोला जाएगा जब एक को मैंने एयर मान लिया या आपका क्या मान लिया, वैक्यूम मान लिया. वैक्यूम और जो आपका एयर है उसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो इसलिए हम उसको 3 लाख मीटर पर 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड कर लेते हैं. तो nm रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय speed of light
इन मीडियम। वो मीडियम चाहे आपका ग्लास हो, चाहे आपका केरोसिन ऑयल है, चाहे आपका पेट्रोल है, चाहे डायमंड है, चाहे ग्लास है, चाहे वाटर है, इट कैन बी एनीवन। तो आपका वो मीडियम कुछ भी हो सकता है। तो एन एम, एन एम को इस साइड रखो ताकि इजी लर्न हो रहे। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज डिनोटेड बाय सी, इसको सी से डिनोट करते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज नोन एज वी। तो एन एम इज इक्वल टू सी अपॉन में, right? So that will be your absolute refractive index. What does it mean? कि when the medium one is always taken as air or vacuum, vacuum होगा आपका first medium, तब आपका जो refractive index है that will be known as your absolute refractive index, and that will be denoted by nm. So nm is equal to speed of light in air divided by speed of light in the medium. So speed of light in air is known as c, or speed of light in medium is known as v. Then we will calculate the refractive index of the different type of the medium. If there is any doubt related to this, tell me. Otherwise, I am giving you the solving the some numericals related to this. And there is a table in your book, and that table will shows that जैसे इन्होंने कहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का किसके साथ, एयर के साथ 1.33 आया है, ठीक है। तो व्हाट डज इट मीन कि जो वाटर है, वाटर की डेंसिटी आपकी क्या है, ज्यादा है किसके मुकाबले में, एयर के मुकाबले में ज्यादा है। और कितने टाइम से 1.33। और सबसे ज्यादा होती है आपकी डायमंड की, दैट विल बी 2.4। सबसे ज्यादा है 2.42, दैट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड। तो इससे हम बता सकते हैं इस टेबल से कि आपका किसका मीडियम डेंसर है, यानी विच इज हैविंग द डेंसर मीडियम। ये 2.42 है तो मैं कहूंगी कि ये जो डायमंड के साथ है, डायमंड इज डेंसर देन दैट ऑफ योर एयर। दिस इज अबाउट योर रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। इज देयर एनी डाउट रिलेटेड टू दिस? यस टेल मी। No. So okay, we are just solving some numericals related to this. There are some numericals. Uh, First numerical is that which is in just simply on the refractive index. Right. So first is given that the refractive index of diamond is 2.42, but it means कि इसका रेशियो क्या था, स्पीड ऑफ लाइट। यदि इन्होंने क्या कहा n21 is equal to 2.42 for diamond। तो what does it mean? तो इसका मीनिंग क्या है? तो we will say that कि the ratio of speed of light in air divided by speed of light in diamond, that is different from, that is equal to 2.42। अब जैसे का light enters from air to glass having the refractive index is equal to 1.50। इसका दिया 1.50 दिया air to glass। Calculate the speed of light in glass. Speed of light in glass we have to calculate, and speed of light in vacuum is given, that is equal to 3 into 10 raised to power 8 meter per second। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21 या n1 लिख दो आप मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट फॉर्मूला लगाइए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम divided by speed of light in glass, राइट। ये कितना दिया आपको 1.50, ये दिया 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकंड, और ये आपकी क्या होता है v। तो 1.5 v is equal to 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकंड, and तो v is equal to 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकंड divided by 1.50। So that will be equal to 2 into 10 raised power 8 meter per second। So speed of light in the glass is equal to 2 into 10 raised power 8 meter per second। You can calculate like this, right? Next numerical.
Next numerical is given. A beam of light passes from air into a substance X. Air to substance X. The angle of incidence, यानी sin I is equal to, that is your 45 degree, or sin R is given, that is equal to 30 degree. You have to calculate the refractive index. You have to calculate the refractive index, and that will be equal to sin I upon में sin R हमने किया हुआ है. Sin R I upon में sin R is equal to constant. तो n is equal to sin I कितना दिया आपको, sin 45 और डिवाइडेड बाय में sin 30 डिग्री. n is equal to आपका सिंपली कितना निकल जाएगा, वैल्यू गिवन थी इसकी 0.707 डिवाइडेड बाय में 0.500, दैट विल बी इक्वल टू 1.414. तो आपको टेबल गिवन है, तो आप टेबल को देख के बता सकते हो. तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है. कई बार आपको साइन की वैल्यू दे देंगे अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ. साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट. ये आपको इसमें क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी. और इससे आप उसकी स्पीड ऑफ लाइट भी निकाल सकते हैं, किसके अंदर, उस मीडियम के अंदर निकाल सकते हैं, क्योंकि 1.41 आपको दिया हुआ है. और आप इसको 3 into 10⁸ से इसको डिवाइड कीजिए और आपका निकल जाएगा. जैसे ये आपका मीडियम आ गया, तो n की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1.414. तो n इज इक्वल टू c अपॉन में v. ये 1.414 ये आपके 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई v. तो v is equal to 3 into 10⁸ meter per second divided by 1.414. So you can calculate the value of the speed of the light in that medium, and that medium is your x. So उससे आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो. That is about your refractive index. ये सारा का सारा आपका refractive index के बारे में बताया, just to show that there is a principle of reversibility of light is also there. एक छोटा सा टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. व्हाट डज इट मीन? कि फॉर एग्जांपल दिस इज योर ग्लास लैम्प, दिस इज योर नॉर्मल रे. A ray of light falls on it with an angle I. After reflection, it will be bended towards the normal. If we kept a plain mirror like there, ये ऐसे आ रही थी लाइट आपकी, यदि मैं प्लेन मिरर रखूंगी तो ये वापस इसी से चली जाएगी. यानी if a refracted ray is reflected on a mirror in the denser medium, then it will be moves with the reversibility. आपकी जिससे आई थी वैसे की वैसे आपकी वापस निकल जाएगी. That is known as principle of reversibility of the light, and that simply it is not in your syllabus, but just to that कि जिस लाइट से आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आया था, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. और जैसे ही बेंड हुई नॉर्मल की तरफ, हमने वहां पे एक मिरर रख दिया, मिरर में से रिफ्लेक्ट होकर आपकी सेम टू सेम चली जाएगी, एंड दैट इज नोन एज योर रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट. सिंपली हम कहें कि n इज इक्वल टू 2 1, तो हम सिंपली कह सकते हैं साइन i अपॉन में साइन r. और उसी तरह से n 1 2, पहले ये क्या था, इस मीडियम से इस मीडियम में गई. अब लेकिन जैसे ही मैं इसको उल्टा करूंगी तो आपका साइन आई अपॉन में साइन आर फिर दोबारा से कहलाया जाएगा. ये कैसे कहलाएगा, क्योंकि अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा दोबारा से. तब जब हमने यहाँ पे क्या रखा था, प्लेन मिरर रखा था, और इन दोनों को मैं जब मल्टीप्लाई करूं n21 into n12 इज इक्वल टू, ये आप सिंपली करो साइन आई अपॉन में साइन आर इंटू साइन आर अपॉन में साइन आई, that will be cancelled. So n21 is equal to n12 is equal to 1, और n21 is equal to 1 upon में n12, यानी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रिवर्सिबल हो जाएंगे. That is known as your principle of reversibility. कि ये एक दूसरे के ऊपर रख दो तो मल्टीप्लाई करो, या यहाँ पे रखो, जो डिवाइड का साइन होगा that will be in the multiplication. So you can calculate that कि एक दूसरे के रिवर्सिबल होंगे. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, दोबारा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई. दैट इज योर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, राइट.
Is there any doubt related to this? Otherwise, I am going to start the lenses. Now we are going to start lens. Mirror हम पढ़ चुके हैं, lens को start कर रहे हैं. हाँ. Yes, lenses. Refraction by spherical lenses. As you have discussed about the mirror, this is your concave mirror and this is your convex mirror. ये आपने concave mirror पढ़ा हुआ है और ये क्या पढ़ा था? Convex mirror. कि जब इनके ऊपर लाइट फॉल करेगी, there will be reflection of the light will take place. But we will discuss about the spherical lenses. Means lenses आपके spherical होंगे, यानी one surface must be spherical in the nature. If there are the two lenses are just like this, both are having the curved area, are thicker in between. Or tapering at ends. Yeah, tapering at ends. This type of the lens is known as your convex lens. इस टाइप के लेंस को हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे. अब इस टाइप का which is just like that, two spherical lenses are there, mirrors are there, and both are having the reflecting surface like this. Then this will means thicker at ends and thinner at between. This type of the lens is known as your concave lens. तो इस टाइप के लेंस को हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव लेंस बोलेंगे. तो one is your convex lens and another is your concave lens. In the convex lens, the in between it is thicker and tapers at the ends is there, but it is just opposite in the concave lens. Thicker ends पे होगा और thinner between में होगा. This type of lens is known as your concave lens, and this lens is your simply I will say that it is converging lens. How can I say that it is converging lens? Have you seen about the magnifying glass? Magnifying glass को देखिए, आपका दोनों साइड से उभरा हुआ दिखाई देगा, and just hold it in your hands and try to pass the sunrays from that on the paper, and the paper starts burning. What does it mean? That all the sunlight which are coming from the infinite distance, they will passes from this lens and converge at one point to show the image of the sun. And जब उसकी वो दिखाई देगी आपको, सारे के सारे वहाँ पे images बन जाएगी, तो आपके वहाँ पे पेपर ने बर्न करना क्या कर देगा? शुरू कर देगा. तो we can show that this lens is converging in the lens. Simply just I will like this. This is your convex lens. The rays which are parallel to principal axis. ये रूल तो आपको सबको ही पता है. The rays which are parallel to principal axis after refraction, उसमें reflection बोला था, हम इसमें क्या बोलेंगे? Refraction. तो they will meet at one point. That point is known as focus. तो जब ये focus पे मिलेंगे तो simply हम कहेंगे this is converging in the nature. तो all the lenses which are convex lens are known as your converging in the nature, like your concave mirror. अब ये जो आपका इसमें से है convex, तो हमने डिस्कस किया. Now we will discuss about the nature of your concave lens. अब इसके साइड पॉइंट डिस्कस करते हैं. If a ray parallel to principal axis, it will be reflected. But if we will pass it like this, so it will meet at here. That will be F, like this. It will be just like this, and it will be moved like this. And if we will draw, it will be like this. This here means यहाँ से आई, रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होगी? वापस पास चलेगी. That is the nature of your concave lens. Means it is diverging in the nature.
यू हैव हर्ड अबाउट द मैग्नीफाइंग ग्लास. जब आप उससे देखने की कोशिश करते हो आपको अक्षर बड़े बड़े दिखा देते हो. जो स्पेक्स लगाते हैं उनके लेंसेज देखते हो कि to correct the vision of the person is there. So that is the type of the lens used in that are your concave lens or the convex lens. Means they are the spherical lens in the nature. Spherical means उनका जो outer surface होगा that will be either outward or inward in the nature. If it will be outward in the nature, then it will be known as your convex lens. If it is inward in the nature, then it will be known as your concave lens. तो convex lens और concave lens के बारे में ये होगा. अब एक जैसे हमने उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह पढ़े थे, वी विल डिस्कस हियर आल्सो फॉर द लेंसेज. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग दिस कॉन्वेक्स लेंस, राइट. द सेंटर ऑफ दीज टू इज नोन एज O and O is known as optical center. O को क्या बोलेंगे हम? ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे. अब देखो ये भी आपका स्फेरिकल इमेज है, ये भी स्फेरिकल इमेज है. इसका आपका F यहाँ होगा और आपका C यहाँ होगा. तो इसको F1 और C1 इस वाले, और इस वाले का इस साइड होगा तो हम लिखेंगे F2 और C2, राइट. और द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस वही अपर्चर बोला जाएगा. जो सेम उसमें बोला था वही बोला था. O को ऑप्टिकल सेंटर, उसमें P को पोल बोला था. इसमें दोनों का जो सेंटर है वो क्या बोलेगा? O, एंड दैट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर. इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या बोला जाएगा? आपको फोकस लेंथ, फोकल लेंथ बोली जाएगी. दैट इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 इधर और इसका C2, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द O एंड द C1 इज नोन एज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर. और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाला, राइट. दैट इज इन केस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. If we will draw concave lens, ये इसका सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, इसका इधर ही F1 होगा और इसका C1 इधर. इस वाले का सेम टू सेम F1, जिधर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ है, सेम टू सेम. दैट जो हमने दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, जो उसमें चीजें पढ़ी थी वही इसमें, कि द डिस्टेंस बिटवीन द O एंड द F1 इज नोन एज योर फोकल लेंथ. डिस्टेंस बिटवीन द O एंड द C1 इज नोन एज योर रेडियस ऑफ द कर्वेचर. फॉर दिस this is your focal length and this is known as the center of curvature, and the distance between them is known as radius of curvature. और जो diameter of the reflecting surface is known as your aperture, and O is the optical center. जैसे मैंने बताया कि जो convex lens है that is your converging in the nature and the concave lens is diverging in the nature. जो दो रूल हमने मिरर में पढ़े थे, 4 रूल, उसमें से 2 होंगे. The line which is parallel to principal axis, first rule क्या कहता है? The line which is parallel to principal axis, after reflection it will passes through the focus. Understand? First rule. First rule क्या कहता है? A line which is parallel to your principal axis, after reflection it will passes through the focus. अब उसी तरह से मैं यहाँ पे भी बनाऊं, a line parallel to principal axis, after reflection it will be passes through the focus like this. It is diverging in the nature, it is converging in the nature. First point. Second point, कि वही same to same, कि if a ray of light passes from focus, first rule समझ में आया? First rule में क्या है? A line parallel to principal axis after reflection passes from the focus. अब इसमें से रिफ्लेक्ट हुई, इसकी देखना, इधर ही मैंने ऑब्जेक्ट रखा और इधर ही इमेज बनेगी. इसमें ऑब्जेक्ट इस साइड रखा, इमेज दूसरी साइड बनना. बी रिमेंबर दैट. उस चीज पे आपका वर्चुअल और उसका पता चल जाएगा. ये आपको ऑप्टिकल सेंटर F1, C1, F2 और C2. A line which passes from the focus, after reflection it will becomes parallel to principal axis. Second rule, same to same. सेम वही रूल है कि एक लाइन जो पासिस होते हैं किसमें से? फोकस में से. रिफ्रैक्शन के बाद किसमें से पास हो जाएगी? वो पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के. अब व्हाट विल बी देयर इन द कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस? ये तो कॉन्वेक्स में थी, कॉन्केव लेंस में क्या होगा? सेम. ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है,
ये आपका C1 है, ये आपका F2 है और ये क्या है C2. A ray of light when passes from the focus, what will happen? Very same to same. Then it will becomes parallel to your principal axis. सिंपली ऐसे ना दिखा के इसको हम सिंपली कैसे दिखाएं, ये आपको फिर इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. रे ऑफ लाइट जस्ट अ सेकंड. कि a ray of light like this, हम सिंपली ऐसे कहें कि ये इसके ऊपर ऐसे गिरी फोकस के ऊपर, आफ्टर रिफ्रैक्शन it will be passes or becomes parallel to your principal axis like this. अब इधर से निकाल दोगे, जैसे इसका मैं दूसरा हिस्सा बनाऊं like this. ये F1 2, ये C2 F1 और ये C1. अब जैसे इसमें लिखा है इधर से, अब लाइक दिस, कि मैं सिंपली कहूं like this. So it will becomes parallel to your principal axis. ऐसे लाइट आई, टकराई और टकराने के बाद क्या होगी, parallel to principal axis. थर्ड रूल, यानी पहले जो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले थी, टकराने के बाद क्या हुई, फोकस में से गई, और जो फोकस में से पास हुई टकराने के बाद उसमें से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी. थर्ड रूल सबसे सिंपल, ये आपका O, ये F1 C1 F2 and C2. If a ray of light is passes from the ऑप्टिकल सेंटर आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट विल बी विद द सेम. जैसे इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर में होगा, इसमें किसके अंदर होगा, आपका ऑप्टिकल सेंटर के अंदर होगा. यानी इसमें से सीधे की सीधे क्या हो जाएगी, वो पास हो जाएगी. इसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस में करें हम, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, तो विदाउट एनी रिफ्लेक्शन इट विल बी पासेस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. दैट आर द थ्री रूल. फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस फ्रॉम द फोकस इन बोथ करके वन द कॉन्वेक्स, दोनों में जाएगी. उसी तरह से जो पैरेलल टू फोकस लेंथ में से पास हो रही है आपकी काइंड, जैसे मैं कहूँ कि फोकस में से पास हो रही है और रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगी, बोथ इन केस ऑफ द कॉन्वेक्स एंड द कॉनकेव. और थर्ड, जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी वो एज इट इज रहेगी, विदाउट एनी रिफ्लेक्शन इट विल बी पासेस फ्रॉम दैट. जो मैंने एक रूल बताया था आपको कि जिसमें मानो हमने मान लो ग्लास लैम्प ली थी, ये आपकी नॉर्मल रे थी, यदि इसी के ऊपर इंसिडेंट रे है तो आपकी विद एन एंगल ऑफ 90 डिग्री there will be no reflection of the light, it will be passes from that. सेम वही वाला रूल होगा, यदि ऑप्टिकल सेंटर में से यदि वो पास हो गया तो विदाउट रिफ्लेक्शन इट विल बी पासेस फ्रॉम इट. इन तीन रूल के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की इमेजेस बना सकते हैं. Should I continue or leave?